बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जमात चहारम के अजीज तलबा व तलबात, मैं हूँ मिस राबिया और आपको मैं यकसा कौमी निसाब के मुताबिक जमात अव्वल ता जमात पंजम तक तमाम मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं साइंस क्लास 4 की चैप्टर 9 सोलर सिस्टम एंड आवर अर्थ की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, टेक द करेक्ट आंसर। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, द ग्रेविटी ऑफ विच बॉडी कीप्स द प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज टुगेदर इन द सोलर सिस्टम। ए जुपिटर, बी अर्थ, सी सन, डी मून। करेक्ट ऑप्शन इज सी सन। Number 2, the earth completes its rotation around the sun in 365 days. This period is called A. Solar year, B. Solar month, C. Lunar month, C. Lunar year. Correct option is A. Solar year. Number 3, due to the annual rotation of earth and tilt on its axis, A. Day and night are formed, B. Seasons change, C. Eclipses are formed, D. Shadows are formed. Correct option is B. Seasons change. Next is number 4. On the globe, in which part of the earth is Pakistan situated? A. Northern hemisphere, B. Southern hemisphere, C. Equator, D. Half in northern and half in southern hemisphere. Correct option is northern hemisphere. Number 5, which planet of the solar system does not have any moon? A. Jupiter, B. Venus, C. Mars, D. Saturn. Correct option is B. Venus. Now short questions. We can only see one side of the moon. Explain. हम चांद का सिर्फ एक ही रुख देख सकते हैं, वजाहत करें। Answer is moon revolves around the earth. It also rotates about its own axis. The duration in which it completes one trip around the earth, it also completes one rotation about its own axis. Okay, that is why we can see only one side of the moon. We never see the other half. जी कि चांद जमीन के गिर्द घूमता है, ये अपने महवर के गिर्द भी घूमता है। ये जितने अरसे में जमीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है, उतने ही अरसे में ये अपने महवर के गिर्द भी एक बार घूम जाता है। यही वजह है कि चांद की सतह का सिर्फ एक ही निस्फ हिस्सा हम देख सकते हैं और दूसरा आधा हिस्सा हम नहीं दिखाई देता हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देयर वर नो टिल्ट ऑन द अर्थ एक्सिस, हाउ वुड इट have affected the season? अगर जमीन का महवर झुका हुआ ना हो तो मौसमियाती तब्दीली पर क्या असर होता है? आंसर इज Earth's tilt axis causes the season change throughout the year. Different parts of Earth receive the sun's most direct rays. So, when the North Pole tilts towards the sun, it's summer in the northern hemisphere and winter in the southern hemisphere. Similarly, when the South Pole tilts towards the sun, it's summer in the southern hemisphere and winter in the northern hemisphere. कि ज़मीन का महवर झुका हुआ ज़मीन का महवरी जो झुकाव है मौसमों की तब्दीली का बायस बनता है। पूरे साल में ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से सूरज के बिल्कुल सीधी शुआएं वसूल करते हैं। लिहाजा जब नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुकता है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में मौसम सर्मा, मौसम गर्मा और साउथ हेमिस्फीयर में मौसम सरमा होता है। इस तरह जब साउथ पोल सूरज की तरफ झुकता है तो साउथ हेमिस्फीयर में मौसम गर्मा और नॉर्थ हेमिस्फीयर में मौसम सरमा होता है। If the earth was not tilted on the axis, there would be no seasons. कि अगर जमीन अपने महवर पर ना झुकती तो कोई मौसम ना होता। Next is, when it is winter in the northern hemisphere, then what will be the season in the southern hemisphere? कि जब निस्फ कुरे शुमाली पर सर्दी का मौसम चल रहा हो तो निस्फ कुरे जनूबी पर कौन सा मौसम होगा? आंसर इज, when it is winter in the northern hemisphere, then in the southern hemisphere there is summer.
कि जब निस्फ कुरे शुमाली में सर्दी का मौसम चल रहा हो तो निस्फ कुरे जनूबी में गर्मी का मौसम चल रहा होगा। Which planet is closest to the sun? सूरज के करीब तरीन सियारे का नाम क्या है? आंसर इज Mercury is the closest planet to the sun. Okay. Next question is why is the solar eclipse usually partial? कि सूरज ग्रहण आमतौर पर जुज़वी ही क्यों नजर आता है? आंसर इज the solar eclipse is usually partial because the moon is much smaller than the earth, so its shadow falls only at the small part of the earth. Therefore the solar eclipse can be seen only in those part of the earth. कि सूरज ग्रहण आमतौर पर जुज़वी ही नजर आता है क्योंकि चांद जमीन से काफी छोटा है, इसलिए इसका साया जमीन के सिर्फ कुछ हिस्से पर ही पड़ता है। सूरज ग्रहण सिर्फ इन इलाकों में ही नजर आता है जहां ये साया पड़ रहा हो। Now constructed response questions. Which phenomena are shown in the following figure? किन फिगर्स में, इन अशकाल में किन मज़ाहिर को जाहिर किया जा रहा है? इसमें जो राइट साइड पे पिक्चर है इसमें ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण और लेफ्ट वाली पे सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण को शो किया जा रहा है। नंबर 2, इन द फॉलोइंग पिक्चर ईच रो had show the axial or orbital movement of earth and moon. Write the correct type of movement in the box given near each arrowhead. हर तीर के निशान सूरज और जमीन पर चांद की महवरी गर्दिश या मुदारी गर्दिश को जाहिर कर रहा है। हर तीर के निशान के साथ बने डब्बे में द्रुत हरकत की किस्म को दर्ज करें। तो इस पिक्चर में देखें मेंशन किया गया है, आप इसको देख लें। नेक्स्ट इज इन हाउ मेनी डेज डज द मून कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द अर्थ? कि चांद जमीन के गिर्द गर्दिशी चक्कर कितने दिनों में मुकम्मल करता है? आंसर इज 29.5 डेज। ओके। नेक्स्ट इज इन हाउ मेनी डेज डज द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन? कि जमीन सूरज के गिर्द अपना गर्दिशी चक्कर कितने दिनों में मुकम्मल करती है? आंसर इज 365 डेज। ओके। Now identify the season in the southern hemisphere as per the given figure. Write the correct season in the boxes given near the dates. कि दी गई शक्ल की बिना पर निस्फ कुरे जनूबी पर मौसम का तयन कीजिए और तारीख के साथ बने डिब्बे में दुरुस्त मौसम को दर्ज करें। जी, तो ये देखें मौसम जो है वो दर्ज किए गए हैं, इनको आप देख लें पिक्चर को। Next is investigate. If a sun stops providing light and heat, what will be the effects on the earth? Would life be possible on the earth? अगर सूरज रोशनी और हरारत देना बंद कर दे तो जमीन पर इसके क्या असरात होंगे? क्या जमीन पर जिंदगी मुमकिन होगी? Answer is if the sun stops providing light and heat, the temperature of the earth will cool. Everything would freeze over. Oxygen will stop. All photosynthesis on the earth would stop, all planets would die, and eventually all animals that rely on plants for food including humans would die too. कि अगर सूरज रोशनी और हरारत मुहैया करना बंद कर दे तो ज़मीन का दर्जा हरारत शदीद ठंडा हो जाएगा, हर चीज़ जम जाएगी, ऑक्सीजन रुक जाएगी और ज़मीन पर तमाम जो फोटोसिंथेसिस है वो रुक जाएगी। आखिरकार तमाम पौधे मर जाएंगे और तमाम जानवर भी जो खुराक के लिए पौधों पर इन्हिसार करते हैं इंसान समेत मर जाएंगे। नाउ प्रोजेक्ट मेक 2 ग्रुप्स इन दी क्लास। 1 ग्रुप विल मेक द मॉडल ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स एंड अदर ग्रुप विल मेक द मॉडल ऑफ सोलर एक्लिप्स। ठीक है, क्लास के 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप चांद ग्रहण और दूसरा जो है वो सूरज ग्रहण के मॉडल बनाए। ये आपका अमली काम है, आपने खुद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Like and share my videos and subscribe this channel for watching more videos based on single national curriculum. Allah Hafiz.